نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وشر الامور محدثاتها بدترین کام دین میں اضافہ ہے وکل محدثۃ بدعہ دین میں اضافہ بدعت ہے وکل بدعۃ ضلالہ بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا عبدا اللہ احکم الحاکمین اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار لا تعداد ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم گنتی شروع کر دیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها میرا رب فرماتا ہے تم ان کو گن نہیں سکو گے ان بے شمار لا تعداد جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں سے بہت زیادہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے نقصان کے اندر ہیں گھاٹے کے اندر ہیں
अस्सेहत वल फराग, एक नेमत सेहत है, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत वल फराग, फरागत, जिसको हम वक़्त कहते हैं। ये दो नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं, एक सेहत और एक वक़्त, जिंदगी, उम्र। बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, नुकसान के अंदर हैं, घाटे के अंदर हैं। ये जो वक़्त है जो हम गुजार रहे हैं, इसको हम जिंदगी कहते हैं जो अल्लाह ने हमें अता की है। जो हमारी उम्र है 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की, 100 साल की, अल्लाह ने हमें एक जिंदगी दी है, वक़्त दिया है, एक उम्र दी है, इस दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन इस वक़्त की हमारे नज़दीक क्या अहमियत है और इस वक़्त की मेरे रब के यहां क्या अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर जो भी बात की है हक और सच फरमाई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक़्त की अहमियत को हमारे सामने उजागर करने के लिए मुख्तलिफ औकात की अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। कसम कब उठाई जाती है? जब किसी चीज की अहमियत बयान करनी हो तो उसको कसम उठाकर बयान की जाती है कि अल्लाह की कसम, ये बात इस तरह की है। अगला सुनने वाला भी तवज्जो करता है कि इसने कसम क्यों उठाई है। असल में कोई बात इसके अंदर जो है वो अहमियत वाली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जब वक़्त की अहमियत को हमारे दरमियान उजागर किया है तो कसम उठाकर की है। किसी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला, रात की कसम जब उसका अंधेरा छा जाए, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए। वल फजर वल लयालिन अशर, वक़्त फजर की कसम और 10 रातों की कसम। ये ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातों की कसम अल्लाह उठा रहा है। इंसान लफी खुस्र, लेकिन जो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर 4 काम करता है वो कभी नुकसान और घाटे के अंदर नहीं आ सकता। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद वह अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। नेक अमल करने के बाद वतवासौ बिल हक, जिस हक बात का उसने इकरार किया है, ईमान ले आया है, उस पर अमल करता है, उसकी दावत देता है, हक बात की दावत। वतवासौ बिस्सब्र, उस हक के रास्ते पर जब निकलता है तो तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, खौफ का सामना, भूख का सामना, तो फिर सब्र करता है और सब्र की तलकीन करता है। ये 4 काम, ईमान, अमल, दावत, सब्र, जब ये इंसान 4 काम कर लेगा, मेरे रब ने फरमाया वो इंसान नुकसान और घाटे में नहीं है। किसी जगह पर अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ुहा, वक़्त चाश की कसम, वक़्त चाश की कसम। अल्लाह ने कसमें उठाकर वक़्त की अहमियत को उजागर किया है, अहमियत बयान की है वक़्त की। लेकिन आज हमारे नज़दीक इस वक़्त की कोई अहमियत नहीं है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है,
جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں 50-60 سال کی زندگی دی ہے، عمر دی ہے، وقت دیا ہے، آج اس چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کون سا کام ہے جس لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وقت کا، اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنا ہوگا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہوں گے۔ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کی تعلیم، تزکیہ نفس بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو آ کے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ جن لوگوں نے سن کر قبول کر لیا وہ تو ہو گئے کامیاب، اللہ کے نبی کے صحابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور سننے کے بعد انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ من ابا، جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابا یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، آج میری زندگی کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہوں؟ آج میری زندگی کا لمحہ، دن اور راتیں کس انداز سے گزر رہی ہیں؟ اللہ کی عبادت یا اللہ کی نافرمانی کے اندر؟ یا آج میرا وقت کس لیے گزر رہا ہے؟ آج ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم دیکھیں، ہماری زندگی، آج ہم دکان پر بیٹھے ہیں، اذان ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے لوگ۔ آج بازاریں بھری ہوئی ہیں، آج اللہ کے گھر بریان ہیں، آج کھیت و کھلیان کی اہمیت ہے، آج اللہ کے قرآن کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ آج میں دن کو جاگ کر اپنے کھیتوں کو پانی دے سکتا ہوں لیکن رات کو جا کر اللہ کے حضور جب اللہ کا آسمان دنیا پر اعلان کر رہا ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ومن یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں فأعطیہ، میں اس کو اس کا سوال پورا کر کے عطا کروں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرَنِي، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، لیکن آج میں کھیتوں کھلیان کو پانی دینے کے لیے سردی کی راتوں کو جاگ سکتا ہوں، گرمی کی راتوں کو چھوٹی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی کہیں میری فصل نہ جل جائے، لیکن کبھی مجھے یہ احساس نہیں پیدا ہوا آج رات میں جاگا نہیں، میں نے تہجد نہیں پڑھی، اللہ کر اعلان کرتا رہا اور میں آرام سے سویا رہا۔
मेरी आंख नहीं खुली, अर्श वाला ऐलान करता रहा और मैं सुबह की नमाज भी गुजर गई, नमाज भी ना पढ़ सका। आज कहते हैं कि कौन किस मसलक वाले सबसे ज्यादा हैं। कोई कहता है बरेलवी ज्यादा हैं, कोई कहते हैं देवबंदी ज्यादा हैं, कोई कहते हैं अहले हदीस ज्यादा हैं, लेकिन ये बात नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा तबका है वो बेनमाजियों का है। बेनमाजियों का तबका सबसे ज्यादा है, जो नमाज नहीं पढ़ते। आज उनकी जिंदगी गुजर रही है लेकिन नमाज से खाली है। यही नमाज है, जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा, वजू करेगा, वजू जब करेगा नमाज पढ़ेगा, ये कल क़यामत के दिन तेरे जो वजू के औज़ा है ना, हिस्से हैं, ये चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औज़ा से, इन वजू के हिस्सों से चमकते हुए से पहचानेगा ये मेरा उम्मती है। जब तू वजू नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, और तेरा नबी कल क़यामत के दिन तुझे कैसे पहचानेगा? जब वजू नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, तुझे जन्नत में कैसे दाखिल होगा? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कि जन्नती लोग फी जन्नातिन यतसाअलून, जन्नत में रहने वाले जब जहन्नमियों की तरफ झांकेंगे, उनसे सवाल करेंगे, मा सलककुम फिस सकर, तुम्हें जहन्नम के अंदर किस चीज ने गिराया है, दाखिल किया है? वो क्या जवाब देंगे? लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज, दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुझे दुनिया की फिक्र है, आज मुझे अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है। आज मैं दुनिया के लिए मेहनत करता हूं, आज आखिरत के लिए मेरी मेहनत नहीं है। आज मैं दुनिया के लिए वसाइल और ज़ादे राह जमा करता हूं, मैं अपना राशन जमा करता हूं, साल भर का राशन जमा करके रखता हूं, लेकिन मुझे आखिरत का ज़ादे राह उसके बनाने की कोई फिक्र नहीं है कि किस वक्त आज मेरा वक्त इस अंदाज से गुजरा। अब आइयो, जब दिल के अंदर कोई गम पैदा होता है ना, या ज्यादा खुशी पैदा हो जाए, ज्यादा खुशी को अल्लाह की तरफ से नेमत मिल जाए, या इंसान को परेशानी गम का सामना करना पड़े, दिल के अंदर जब गम आता है, वो गम आंसू बनकर आंखों से निकलते हैं। आज हमारे दिलों के अंदर गम पैदा होते हैं, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी नहीं होते, आंसू जारी नहीं होते। क्यों? आज दिल सख्त हो चुके हैं, दिल सख्त हो चुके हैं। दिल के ऊपर ना कुरान असर करता है, ना नबी अज़ीशान का फरमान असर करता है। ये दिल सही हो ना तो पूरा जिस्म इंसान का सही होता। जब जिस अलाफी जसदन मुज़गा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जब ये सही होगा गोश्त का टुकड़ा, पूरा जिस्म सही होगा। व इज़ा फसदत फसदत जसद कुल्लु, जब ये गोश्त का टुकड़ा फसादी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो पूरा जिस्म बेकार हो जाएगा। अला वहिया कल्बुन, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। आज मैं दिल को देखूं, मेरे दिल का मलान किस तरफ है, मेरे दिल के अंदर चाहत किसकी है, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत किसकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आया, आकर अर्ज करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने उस क़यामत की तैयारी क्या की है? सहाबी रसूल ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मेरे पास ज्यादा रकू है ना सजदे हैं, लेकिन तैयारी मेरी ये है, अहब्ब अल्लाह व रसूलहू, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नका मा मन अहबब्ता, तो दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करेगा ना, कल क़यामत के दिन उसी के साथ तू खड़ा होगा। आज मेरे दिल के अंदर, दुनिया के अंदर किसकी मोहब्बत है? क्या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, या आज दुनिया की, दुनिया वालों की, आज खानदान की मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है? आज मैं अपने दिल को टटोलूं तो सही,
एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, दूसरी तरफ मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की अरमान है, तमन्ना है, आरज़ू है, खानदान है, कबीला है, दोस्त है, कारोबार है, दुनिया है। मैं अल्लाह और उसके रसूल को अहकामात को तो तरजीह देता हूं या अपने दुनिया को तरजीह देता हूं? आज मेरी जिंदगी इस अंदाज से गुजर रही है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस चीज को सबसे ज्यादा याद किया करो जो लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली है, वो है मौत। मौत को जब याद इंसान को होता है ना, इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। मौत इंसान को आज याद नहीं है, मौत को भूल चुके हैं हम, मरना भी है कि नहीं है। जिनको मौत याद होती है उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, रात को सोना चाहे नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, नमाज उनकी जाया नहीं होती, नवाफिल वो पढ़ते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल आपकी अकली मिसाल भी है, दुनियावी आपकी आंखों के सामने। जेल के अंदर एक मुजरिम है, जज ने उसको सजाए मौत सुना दी है, फांसी की सजा, कि 4 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी। मंगल की सुबह, आज जुमा है, मंगल की सुबह 4 बजे इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उस जज के बारे में फैसला जज ने कर दिया है। बताओ वो कैदी, वो मुजरिम जिसको पता है मंगल की सुबह 4 बजे मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा हमेशा के लिए, क्या उसको नींद आएगी? हमेशा हर वक्त वो उसकी आंखों में आंसू होंगे, रो रहा होगा, रो रो के अपने रब को राजी करेगा, रात को सोना भी चाहेगा, लेकिन उसको मौत याद आएगी कि मंगल को मैं दुनिया के अंदर छोड़ जाऊंगा। उसको मौत याद है, उसको नींद नहीं आएगी, खड़ा होकर नवाफिल पढ़ेगा, नमाज का टाइम देखेगा, कभी नमाज मेरी लेट ना हो जाए, फर्ज नमाज को वक्त के ऊपर पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अस्कार करेगा, रब से माफिया मांगेगा, दुआएं करेगा। रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे, वो अपनी दुकान, अपनी खेतों खलियान, अपनी दुनिया के बारे, कारखाने के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, उनको नसीहत करेगा, नेक काम करने हैं, बुराई से रुकना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना, लोगों के हकूक अदा कर दो, जबत नहीं करने। उसको दुनिया की परवाह नहीं होगी, उसको पता है दुनिया की अब मुझे क्या फिक्र, मैं तो दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। उसको अपनी आखिरत की फिक्र लगी होती है। रात को सोना भी चाहे तो नींद नहीं आती, दिन को आंखों से आंसू नहीं रुकते, क्योंकि उसको मौत याद है। आज हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते कि आज हम मौत को भूल चुके, आज मौत को भूल चुके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा जलसा कौमुन मजलिसिहिम, कुछ लोग मजलिस के अंदर बैठते हैं, हम भी मजलिस से जाते हैं, मार्केट के अंदर, गांव के अंदर, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं, मजलिस से लगती हैं। लम यज़कुरुल्लाह वलम युसल्लु अला नबीहिम, उस मजलिस के अंदर ना अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ना अल्लाह की बात की जाती है, ना अल्लाह को याद किया जाता है, ना अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजा जाता है। इल्ला कानत मजलिसुहुम तिरातन यौमल क़ियामती, ये मजलिस उन लोगों की जो उस मजलिस के अंदर बैठे होते हैं, इंसान के लिए नदामत और शर्मिंदगी का बैस बन जाएगी। इंशाअ, अगर अल्लाह चाहे तो उस मजलिस वालों को माफ कर सकता है, व इंशाअ अखज़हुम, अगर अल्लाह चाहे तो उस मजलिस के अंदर उन्होंने जो गिबतें की होंगी, चुगलियां की होंगी, बहतान किए होंगे, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं होती, दुनिया की बात की जाती है, अल्लाह चाहे तो उनके उस काम की वजह से अल्लाह पकड़ सकता है। और हमारी मजलिसों के अंदर क्या बात होती है? हमारी मजलिस से, हमारी रात की, दिन की मजलिस से, या सियासत के ऊपर बात होती है, या किसी शख्सियत के ऊपर बात होती है, या अपनी बिरादरी के ऊपर बात होती है। अपने आप को नेक बनाकर पेश किया जाता है, अपने आप को इज्जत वाला बनाकर पेश किया जाता है, और दूसरों के ऐब बयान किए जाते हैं उस मजलिस के अंदर बैठकर। इसको गीबत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानता है गीबत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने भाई की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी बात कर लोगों के सामने जो तेरा भाई उस बात को बयान करना नापसंद समझता है।
इसको गीबत कहते। एक साहबी खड़ा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर उनके अंदर वो गलती जो मैं बयान कर रहा हूं किसी मजलिस के अंदर मौजूद है तो फिर भी गीबत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे भाई के अंदर गलती है तो उसकी गलती उसके गैर मौजूदगी के अंदर लोगों के सामने बयान करता है, इसको गीबत कहते हैं। अगर उसके अंदर गलती नहीं है तो ये उसके ऊपर बोहतान तू बांध रहा है। बोहतान भी मना किया है और गीबत भी मना की है। हम अपनी तरफ नहीं देखते, उंगली उठाते दूसरे की तरफ, वो इस तरह का है, वो इस तरह का है। और नहीं भाइयों, कुरान और हदीस ये हमें तरबियत नहीं देता। कुरान और हदीस हमें ये बताता है कि तूने क्या किया है, तू कैसा है, तू तेरी रात कैसी है, तेरा दिन कैसा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और देखो तुमने, तुम्हारे नफ्स ने, तुम्हारी जान ने, तुम्हारी जात ने कल क़यामत के लिए तुम्हारा क्या चीज भेजी है आखिरत के अंदर। अपने बारे में सोचो, वत्तकुल्लाह, डर जाओ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह जो हम अमल करते हैं ना, अल्लाह उसको एक एक अमल को जानता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। कल क़यामत के दिन छोटे से छोटा नेकी का अमल भी किया होगा वो भी इंसान देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो छोटे से छोटा गुनाह किया होगा वो भी इंसान देख लेगा। आज हमारी वीडियो बन रही है, जिंदगी की वीडियो बन रही है, छोटे से छोटा गुनाह और नेक इंसान क़यामत के दिन देख लेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर करता है, अर्ज करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे कोई नसीहत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन। 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझो। 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझो। पहली चीज़, अन शबाबका क़ब्ला हरिमिका। जवानी तेरे पास है, बुढ़ेपा आने से पहले पहले जवानी को गनीमत समझ। गनीमत का क्या मतलब है? गनीमत का मतलब है फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाना किसी चीज़ से बेस को गनीमत समझ के फ़ायदा उठा ले। अभी तेरे पास जवानी है, ताकत है, जब बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़े लोगों को देखा करो, उसकी माशरे के अंदर क्या हैसियत होती है, क्या हैसियत होती है। और बुढ़ेपे को आने से पहले पहले जवानी को गनीमत समझ। वह सेहत का कबला साकिमी का, अभी तेरे पास सेहतमंदी है, तंदुरुस्ती है, सेहतमंद है, तो बीमारी के आने से पहले पहले इसको गनीमत समझ, सेहतमंदी को गनीमत समझ। कि ऐसी बीमारी भी आ जाता है, इंसान 4 पैसे उठ ही नहीं सकता, आखिर इस दुनिया को छोड़ जाता है। बीमारी के आने से पहले पहले सेहतमंदी को, आज कोरोना का खौफ, इंसानों के दिलों में डर, कोरोना कोरोना कोरोना, इतना मौत को याद करते तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर राजी हो जाता, अल्लाह गुनाह माफ कर देता। जितना आज कोरोना का डर है, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है। हाँ, महफूज भी अल्लाह रखता है, हाँ, बीमारियों से शिफा भी अल्लाह देता है। ये तेरा अकीदा होना चाहिए, डर होना चाहिए। तो अल्लाह का दिल में डर रख, मौत का खौफ रख, जहन्नम का खौफ, जन्नत का शौक रख अपने दिल के अंदर। इस तरह तेरी जिंदगी गुजरनी चाहिए। सेहतमंदी है, बीमारी से पहले सेहतमंदी को गनीमत जान। वह फरागा का कबला शुगले का, अभी तेरे पास वक़्त है, मसरूफियत के आने से पहले वक़्त को गनीमत समझ। वह गिना का कबला फ़क्री का, अभी तेरे पास गिना अमीरी है, फ़कीरी के आने से पहले इस अमीरी को गनीमत समझ। वह हयात का कबला मौत का, अभी तू जिंदा है, इस जिंदगी को गनीमत समझ मौत के आने से पहले। ये 5 चीजें हैं। अल्लाह के नबी ने अपने साथी को नसीहत की कि 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत समझ लो, उनसे फायदा उठा लो। आज हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हम कितना फायदा उठा रहे हैं? फायदा ये नहीं कि दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करते रहे और इन चीजों से फायदा नहीं, इन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर गुजारनी चाहिए। एक वक्त आज हमारे पास है, लेकिन आज हम
हमारे पास वक्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। आज हमारे पास वक्त है, लेकिन आज अल्लाह के दीन की दावत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आज मेरे पास वक्त है, आज कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आज वक्त मौजूद है, लेकिन आज सुबह शाम के अस्कार, कमजोर लोगों की मदद करना, आज मेरे पास वक्त नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं मा अस्बहा मन अस्बहा मिनकुम अल यौमा साइमन, आज के दिन किसने तुम में से रोजा रखा है? काला अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह के नबी मैंने रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फमन अतअमा मिनकुम अल यौमा मस्कीनन, आज के दिन तुम में से किसने मस्कीन को खाना खिलाया है? काला अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु आना, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, अल्लाह के नबी मैंने मस्कीन को खाना खिलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फमन आदा मिनकुम अल यौमा मरीजन, आज के दिन तुम में से किसने मरीज की इयादत की है, तीमारदारी की है? काला अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला आना, कहा अल्लाह के नबी मैंने की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा फमन ताबिया मिनकुम अल यौम जनाज़तन, आज तुम में से किसने जनाजा पढ़ा है? काला अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जनाजा पढ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमाना फी अमरी इल्ला दखलल जन्ना, जिस शख्स के अंदर ये काम जमा हो जाए अल्लाह उस शख्स को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। सही मुस्लिम की हदीस है। आज हम मस्कीनों को, कमजोरों को खाना खिलाना पसंद नहीं समझते। आज हम अपने पेट की सोचते हैं, मेहमान आ जाए, मेहमान की तकरीम ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमारे दिल के ऊपर बोझ बन जाता है। नहीं, आज कोई मांगने के लिए आ जाए जो हकदार हो, कारोबारियों को नहीं देना, जो हकदार हो, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके उसकी अपनी हाजत को पूरा करना। ये अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ये काम करने होंगे। आज मदारिस के अंदर लोग बच्चे भेजते हैं, पढ़ते हैं, और वो गरीब घरानों के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा हकदार वो होते हैं जो आपका पैसा सही तरीके से लगेगा। और मदारिस के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, जिस तरह दारुल सुफा के अंदर सहाबा दूर दराज से आकर रहते थे, लोग उनको खाना खिलाते थे, अपने घरों से वो दीन सीखते थे सुफा के अंदर रहकर। आज वो सुफा मदारिस की सूरत में मौजूद है। ये दीन को सीखने वाले तालिब इल्म, इनके ऊपर खर्च करना सबसे बेहतरीन तुम्हारा वो पैसा होगा। आज तुम्हारे दरमियान ये इदारा मौजूद है, यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तालीम दी जाती है, नबी अज़ीशान के फरमान की तालीम दी जा सकती है। अपना पैसा खर्च करना है, खाना खिलाना है, तो इनकी जरूरियात पूरी करो, इनके खाने को पूरा करो, इनके जो जरूरियात होती है, किताबें होती हैं, कपड़े होते हैं, इनकी जरूरियात को पूरा करो। इंशाअल्लाह इसके बदले अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफी जन्नतिन गुरफन, जन्नत के अंदर अल्लाह ने महल तैयार किए हैं। यरा मिन ज़ाहिरिहा मिन बातिनिहा, अगर तू बाहर उस महल के खड़ा है तो अंदर का सारा मंजर तू देख लेगा। वमिन बातिनिहा इला ज़ाहिरिहा, अगर तू अंदर खड़ा है तो बाहर का मंजर देख लेगा। दीवारें मौजूद हैं, लेकिन दीवारों के अंदर भी तेरी नजर जा रही है जो अल्लाह ने जन्नत के अंदर महल तैयार किए हैं। ये अल्लाह ने किन के लिए तैयार किए हैं? अल्लाह ताला लिमन अतामा तामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। वो अलानल कलाम, नरम गुफ्तगू करते हैं, नरमी
कारोबार के अंदर, खरीदो फरोख्त के अंदर भी नरमी इख्तियार करते हैं, झिड़कते नहीं। अतमताम व आलान कलाम, खाना जो खिलाते हैं और जो नरम गुफ्तगू करते हैं। वताबा सियाम, और तीसरे वो लोग जो नफली रोजे रखते हैं। वसल्लु बिल्लैल वन्नास बिनियाम, चौथे वो लोग जो रात को लोग सो जाते हैं वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज। अल्लाह ने ये महल, ये अल्लाह ने जन्नत के अंदर उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इदारा, इसकी क्या जरूरियात है, ऐलान करने की जरूरत ना पड़े। हर शख्स ये कहे कि मेरा पैसा, मेरी ज़कात, मेरा सदका इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले वो मसाकीन, गरीब, कमजोर जो बच्चे हैं उनके ऊपर मेरा खर्च होना चाहिए। जब बच्चा वो पढ़कर आलिम बनेगा, तुम्हारा उस आलिम बनाने के अंदर तुम्हारा हिस्सा होगा। जहां पर जाकर नमाज पढ़ेगा, तकरीर करेगा, कुरान पढ़ेगा, तुम्हें अल्लाह अजर अता फरमाएगा, तुम्हारे लिए सदका जारिया बना देगा। आज हम एक दुकान से दूसरी दुकान तो बना लेते हैं दुनिया के फायदे के लिए, लेकिन अपने आखिरत के फायदे के लिए हमने कोई बैंक अकाउंट जो हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमें पीछे से भी अजर मिलता रहे। याद रखो, ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक वक्त आएगा इंसान, दो वक्त ऐसे आएंगे इंसान शर्मिंदा होगा, नदामत। आज वक्त भी है, अमल नहीं है। इंसान जब वक्त नहीं होगा, इंसान अपने रब से कहेगा, या अल्लाह मैंने नेक अमल करने, मुझे मोहलत दे, वक्त दे, लेकिन अल्लाह वक्त नहीं देगा। आज माल है, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, वक्त भी है, माल भी है, और जगह भी खर्च करने की मजबूत है। एक वक्त आएगा इंसान अपना माल खर्च करना चाहेगा ताकि मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा, उसको माल खर्च करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो दो वक्त इंसान शर्मिंदगी इख्तियार करेगा, नदामत। पहला वक्त होगा मौत का। मौत, जब इंसान के पास मौत आएगी ना, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी एक के पास मौत का वक्त आ जाएगा तो वह इंसान क्या कहेगा, काल रब्बिरजिऊनी लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु। काल रब्बिरजिऊनी, कहेगा मेरे रब मुझे वापस लुटा दे, मौत का वक्त है, मौत को थोड़ी देर के लिए रोक ले। काल रब्बिरजिऊनी लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु, जो दुनिया में छोड़ के आए उसके अंदर जाकर मैं नेक अमल करना चाहता हूं। मेरा रब क्या फरमाएगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, अब तुझे वक्त नहीं दिया जाएगा। बड़ा वक्त मिला था, तूने गफलत के अंदर गुजार दिया, दुनिया करता रहा। उस वक्त तुझे नेक अमल, तू सुनता था, कुरान हदीस सुनता था, जुमा सुनता था, दुरूद सुनता था, प्रोग्रामों के अंदर जाता था, लेकिन तो नेक अमल की तरफ तवज्जो नहीं देता था। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत, और लोगों जो हमने, अल्लाह फरमाता जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है ना, उनमें से खर्च करो, इससे पहले तुम में से किसी एक के पास मौत का वक्त आ जाए। जब इंसान के पास मौत का वक्त आ जाएगा, फिर इंसान क्या कहेगा, फयक़ूला रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीब, फिर इंसान कहेगा, ए मेरे रब, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीब, एक थोड़े वक्त के लिए मुझे मोहलत मिल सकती है, अल्लाह थोड़ा वक्त मुझे मिल सकता है मोहलत, ये मौत को टाल दे। क्या करना है, फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका करके नेक लोगों में शामिल होना चाहता हूं। आज माल है, सदका करने का दिल नहीं करता, खर्च करने का दिल नहीं करता। जब मौत आएगी ना, फिर कहेगा, या अल्लाह फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मुझे थोड़ी देर के लिए लौला अख़्ख़रतनी इला अजल करीब मोहलत मिल सकती है। माल मैंने छोड़ा है, उसमें से सदका, उस माल को सदका करके मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊं, इतना वक्त मुझे मिल जाए। अल्लाह फरमाएगा, लन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी नफ्स का वक्त आ जाता है, इंसान का वक्त आ जाता है ना मौत का, अल्लाह उसको एक लम्हे के लिए भी मौखर नहीं करता। आज इस ज़िंदगी को गनीमत समझो, गनीमत समझो, और जो माल अल्लाह के रास्ते में
खर्च करो और जो वक़्त है अल्लाह की इबादत में गुजारो। दूसरा मौका कौन सा होगा? हर इंसान ने अल्लाह के सामने पेश होना है, वो बुरा हो या नेक हो, इंसान ने अल्लाह के सामने पेश होना है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु क़दम इब्न आदम, इब्न आदम इंसान, आदम के बेटे इंसान को कहा जाएगा, वो मर्द है या औरत, इंसान के अंदर दोनों मौजूद हैं। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम, इब्न आदम को कहा जाएगा अपने दोनों कदम नहीं हिलाने, इन्हीं दोनों कदमों के ऊपर खड़े होकर यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बिही, क़यामत का दिन होगा, रब के सामने खड़ा होगा। हत्ता युसअलु अन खम्सिन, उस इंसान से 5 सवाल किए जाएंगे, 5 सवाल किए जाएंगे। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, पहला सवाल मैंने तुझे अल्लाह की तरफ से सवाल किया जाएगा कि तुझे उम्र दी थी 50 साल की, 60 साल की, 70, 100 साल की, बता तूने अपनी उम्र किस तरह गुजार के आया है। एक एक लम्हे का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुस्नद अहमद अबू दाऊद की रिवायत बयान कर रहा हूं। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, बता कैसे गुजार के आया है। दूसरा सवाल अन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल किया जाएगा जवानी का, बचपन और बुढ़ेपे का नहीं, जवानी का सवाल अल्लाह करेगा। अन शबाबिही फीमा अबलाहु, तो इस जवानी को कैसे बुढ़ेपे के अंदर तब्दील करके आया, जवानी के दिन तेरे किस तरह गुजरे थे, बता जवानी तेरी किस तरह गुजरी थी। तेरी जवानी पर रब रहमान खुश था, नबी ज़ीशान के सीरत तैयबा के ऊपर अमल किया था, या शैतान तेरे ऊपर खुश था। आज मैं जरा अपने आप को देखूं तो सही, मुझे आज एक मसला यहाँ याद आ रहा है। सही बुखारी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही साहबी रसूल हैं ये, क्योंकि मुजाहिद भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे। अबू जहल के गर्दन बदर के मैदान के अंदर यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने काटी थी, और यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद नबवी के अंदर दर्स देता है और मसला बयान कर देता है। मसला बयान कर दिया कि किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ने 3 औरतों के ऊपर लानत की है। ये बात सहाबियात तक पहुंची। उम्मे यकूब रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबिया है, उन तक जब ये बात पहुंची, वो भी मुफस्सिर कुरान थी, कारिया थी, आलमा थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर में आ गई। डंडोरा नहीं पीटा कि साहबा ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मसला ही गलत बयान कर दिया है, स्पीकर खोल के नहीं, मुखालफत नहीं की, बात करने के लिए उसके घर में आ गई। कहा मेरे भाई तूने ये मसला बयान किया है? हाँ किया है मैंने मसला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, मुझे तो किसी आयत में अल्लाह ने ये 3 औरतों के ऊपर लानत नहीं की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा मेरी बहन क्या तूने कुरान की ये आयत पढ़ी है? मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो चीज तुम्हें रसूल बता दे उसमें को अमल कर लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। ये तो कुरान की आयत है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते थे अल्लाह की इजाज़त से बोलते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी ज़बान को हरकत नहीं देते थे, बोलते नहीं थे जब तक कि अल्लाह वही नहीं भेज देता था। बात सही है। वो 3 औरतें कौन सी थी? जो दांतों के दरमियान फासला बनवाती है खूबसूरती के लिए, चेहरे के ऊपर बाल उगाएं तो खेड़ती है खूबसूरती के लिए, हाँ चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी जगह पर सुराख करके सुरमा भरवाती है तो खूबसूरती के लिए। यह 3 किस्म की औरतों के ऊपर अल्लाह ने लानत की है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 औरतों को लानत की है, क्योंकि नबी की लानत अल्लाह की लानत है। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह
अल्लाह की इताअत की, क्योंकि अल्लाह के नबी अपने रब की इजाज़त के बगैर बोलते नहीं थे। कहते बात मुझे समझ आ गई कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कुरान की तशरीह कर रही है, नबी की लानत अल्लाह की लानत है। कहती है ये तो तेरी बीवी के अंदर भी पाई जाती है। कहा कमरे के अंदर मेरी बीवी बैठी है, जाके मुलाकात करके आ। उम्मे यकूब रजी अल्लाह अन्हा अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर उसकी बीवी से मिलती है, वापस आती है। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरे भाई, मैंने तेरी बीवी के अंदर कोई तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं पाई, बिल्कुल तेरी बीवी ठीक है, मुझे किसी ने गलत खबर पहुंचाई थी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा इन तीनों में से अगर एक भी इनके अंदर गलती पाई जाती, मैं अपना बिस्तर अपनी बीवी के बिस्तर से जुदा कर लेता उस वक्त तक जब तक कि वे नबी की नफरमानी छोड़ ना देती। खामंद और बीवी के हकूक मुनक़ते कर देता, छोड़ देता, क्योंकि नबी मेरी बीवी और नबी की नाफरमानी कर रही हो। आज हमारे घरों के अंदर ख़वातीन बगैर पर्दे के फिरती हैं, हमें परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। वो नमाज ना पढ़े हमें परवाह नहीं है, गीबतें करते रहे हमें परवाह नहीं है, जो मर्जी घरों के अंदर करती रहें, कभी हमने जाकर पूछा नहीं। लेकिन ईमान वालों, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों की तरबियत तुमने करनी है, नमाज का तुमने पूछना है। जहां तुमने खाने के लिए पूछ सकते हो, अपने कपड़ों के बारे में पूछ सकते हो, अपने दूसरे मामलात के बारे में पूछ सकते हो, और नहीं पूछते तो आज नमाज के बारे में नहीं पूछते, नहीं पूछते तो आज कुरान के बारे में नहीं पूछा जाता, न अपनी औलाद से, न अपनी बीवी से, न अपनी मां से, न अपनी बेटी से, न अपनी बहनों से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरी बीवी के अंदर एक नाफरमानी होती तो मैं अपने हकूक जो बीवी के थे मुनक़ते कर देता, बोलचाल बंद कर देता। यह मसला सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मसला आपको समझ आ गया होगा? नहीं, मसला औरतों को मैं समझा नहीं रहा, मर्दों को समझा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल, मैं अब मर्दों की बात आपको मसला समझाना चाहता हूं। यह तो है बुखारी का मामला। अब अल्लाह ने कुरान के अंदर ना 3 कस्में उठाई, 4, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन पहाड़ की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। 4 कस्में उठाकर अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान को अहसन तक़वीम, खूबसूरत शक्ल सूरत के साथ पैदा किया इंसान को। और इंसान के अंदर मर्द भी है और औरत भी है, मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है। जिन्स बयान की लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है शक्ल सूरत के साथ। मर्द का चेहरा अल्लाह ने और तरह बनाया है, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी लगाई है, इसमें खूबसूरती है। औरत के चेहरे के ऊपर अल्लाह ने दाढ़ी नहीं लगाई, उसके अंदर खूबसूरती है, उसको पर्दा करने का हुक्म दिया है। अब बात समझना, औरत के चेहरे पर अल्लाह ने दाढ़ी नहीं लगाई, नबी की लानत क्यों है, अल्लाह की लानत क्यों है? वो उसके चेहरे पर बाल उगाए थे, उसने उखेड़े हैं, किस लिए? खूबसूरती के लिए। उसके ऊपर अल्लाह के रसूल की लानत, अल्लाह की लानत है। ऐ इंसान मर्द, अल्लाह ने तेरे चेहरे के ऊपर करोड़ों बाल दाढ़ी की सूरत में लगा कर भेजे हैं, तो उसको काट के गंदी नालियों में क्यों फेंकता है? उसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ खूबसूरती है जो औरत चाहती थी, आज मर्द भी वही खूबसूरती चाहता है, इस दाढ़ी को इसलिए कटाता है। क्या उस औरत के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत हो सकती है? ऐ मर्द, जिसके बारे में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद व नसारा वल मजूसीन, यहूद व नसारा की मुखालफत करो और मजूसियों की मुखालफत करो, दाढ़ियों को माफ कर दो, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें कटाओ। मेरे रब ने पैदा की, मेरे नबी ने कहा माफ कर दो। शैतान कहते नहीं नहीं, तेरे काली कलवट्टी दाढ़ी तेरे चेहरे के हुस्न को मांद करी, इसको काट दे। मेरा आपसे सवाल है, आज जो दाढ़ियां कटाने वाले, शेव कराने वाले, इसके पीछे क्या मकसद है दाढ़ी कटाने का? क्या फायदा मिलता है? ईमानी, माली, कौन सा फायदा है जो मुझे बता दो, मैं भी कटा देता हूं। हम नाई को पैसे देकर
ये सवाब का काम है या गुनाह का काम है? अगर सवाब का काम है तो मेरा पैसा भी सवाब के अंदर लग रहा है, अगर गुनाह का काम है तो मैं पैसे देकर गुनाह कमा रहा हूं। आज इंसान सिर्फ खूबसूरती के लिए पैसे देकर गुनाह कमा रहा है, लेकिन पैसे देकर अजर कमाने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं आपको कहूं, इस मदरसे के लिए घी की जरूरत है, दालों की जरूरत है, आटे की जरूरत है, चावलों की जरूरत है, अजनास राशन की जरूरत है, तो आज कितने लोग हैं इस नेकी को कमाने के लिए अपनी जेबों को खाली कर देंगे, लेकिन अपनी दाढ़ी कटाने के लिए नाई का शुक्रिया भी अदा करेंगे, मेहरबानी तूने मुझे टाइम दिया है इतने रश में से, ये ले पैसे ले, ये इनाम के तौर पर तू 10 रुपए और रख ले, कोई परवाह नहीं है, तूने दाढ़ी अच्छी काटी है। मेरा आपसे सवाल है, दाढ़ी क्यों कटाते हो? अल्लाह ने पैदा की, शैतान कहता है काट। आज मैं रब की बात मान रहा हूं या शैतान की बात मान रहा हूं? मैं किसका सिपाही बना हूं? अल्लाज़ीना आमनु युकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लाज़ीना काफरू युकातिलूना फी सबीली तागूत। ईमान वाले रब रहमान के सिपाही होते हैं, जो काफिर हैं शैतान के सिपाही होते हैं। आज मेरा किन सिपाहियों में, किस फौज के अंदर, किस सिपाही मेरे हाथ अल्लाह की नाफरमानी के अंदर चल रहे हैं या अल्लाह की नाफरमानी के अंदर? फरमा बरदारी या नाफरमानी, मेरा शुमार किन में है? मादरत के साथ यह मिंबर इस बात का हक रखता है कि हक बयान किया जाए, यह तनकीद नहीं है, इस्लाह है। कुरान और हदीस सबसे इंसान का इस्लाह करने वाली चीज है। वान शिबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल इंसान से किया जाएगा जवानी के बारे में। बताओ तेरी जवानी कहां गुजरी, किस अंदाज से गुजरी। तीसरा सवाल अन माल ही, माल के बारे में पूछा जाएगा। इसके 2 सवाल होंगे, 2 जुज होंगे। ऐ नक्तसबहु व फीमा अनफकहु, तूने माल कैसे कमाया था, कहां से कमाया था, हलाल या हराम, बता। व फीमा अनफकहु, दूसरा सवाल, तूने हलाल या हराम माल कमा लिया था, बता तेरा माल खर्च कहां हुआ था। ऐ नक्तसबहु व फीमा अनफकहु, माल किस अंदाज से कमाया था, जमा किया था, और तूने माल कहां खर्च किया था। 5वां सवाल अन इल्म ही, इल्म के बारे में सवाल होगा। यह दुनिया के इल्म के बारे में नहीं। आज हम अपने बच्चों को जनाब डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं, पायलट जनाब, लेकिन आज नहीं बनाते तो दीन का इल्म, मस्जिद का इमाम नहीं बनाते, मस्जिद का खतीब नहीं बनाते। क्यों? मस्जिद का इमाम मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मस्जिद नबवी के हरम मक्की के खतीब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज आशिक़ रसूल तो अपने आप को कहता हूँ, लेकिन मेरी आज औलाद, मेरे बेटे बेटियाँ, आज दुनिया की तालीम के लिए मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन दीन की तालीम के लिए मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता। ये खाएगा कहाँ से? मौलवी बन गया, मेरा बेटा खाएगा कैसे, अपनी औलाद को कहां से खिलाएगा? जब मौलवी बैठे हों, कहते हैं मौलवी तो खांदे ही बड़े, ना अल्लाह रिज़्क़ ही बड़ा देता है। रिज़्क़ अल्लाह हर किसी को देता है, जितना अल्लाह ने लिखा अल्लाह ने देना ही देना। अल्लाह अपने वादों को पूरा करने वाला है। हमें अपने रब पर यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है। अन इल्म ही, दीन के बारे में, दीन के इल्म के बारे में बता, दीन का जो इल्म था उसके ऊपर अमल कितना करके आया तू। ये 5 सवाल किए जाएंगे। जो सवालों का सही जवाब दे लेगा ना, जब आप किसी क्लास में, बच्चे आप भी पढ़ते रहे होंगे, उस्ताद भी होंगे, जो बच्चा सही जवाब देता है ना, उसको शर्मिंदगी नहीं होती, सर नहीं झुकाता, सीना चौड़ा खड़ के सामने खड़ा होता है ताकि उस्ताद मुझे शाबाश दे। जिस बच्चे को सवाल का जवाब ना आए ना, तो वो क्या करता है, सर झुका कर खड़ा, उस्ताद जी सुस्ती हो गई, याद नहीं किया, टाइम नहीं मिला, सर झुका कर खड़ा। अल्लाह ने यही मंजर खींचा है, जो जवाब नहीं दे सकेंगे ना, वो अपने सर को झुकाएंगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रऊसी मिन इंद रब्बिहिम वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना, काश तू उन मुजरिमों को देख सकता, वो मंजर तू देख सकता जब रब के सामने जिन लोगों ने सवालों के जवाब नहीं दिए होंगे, नाकिसु रऊसिहिम, अपने सर झुका कर खड़े होंगे, मिन इंद रब्बिहिम, अपने रब के सामने खड़े होंगे और सर झुका कर खड़े होंगे। क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना
व समीना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मोकिनून। रब्बना, ऐ हमारे रब, अब सरना हमने देख भी लिया कि अपनी आंखों से देख लिया, क्या होगा वहाँ, जन्नत होगी जहन्नम होगी। वह समीना, हमने सुन लिया है, हमने सुन लिया है। फरजेना, या अल्लाह हमें दुनिया के अंदर वापस भेज दे। ना अमल सालिहन, अब हम दुनिया के अंदर जाकर अमल करेंगे तो सिर्फ नेक अमल करेंगे। इन्ना मोकिनून, अब हमें यकीन आ गया, पूरा यकीन आ गया कि नहीं, ये इंसान को जवाब देना पड़ेगा ज़िंदगी का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी के वक़्त जो तेज़ी से गुज़रा है इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इस वक़्त को, आज बात हमने की है वक़्त की, अल्लाह ने दो नेमतें, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, नेमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीर मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे, नुकसान के अंदर हैं। वो दो नेमतें हैं, सेहत और एक फ़रागत, वक़्त। वक़्त हमारी ज़िंदगी है जो गुज़रा, एक एक लम्हा ये वक़्त है। जब हमारा वक़्त ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे। अल्लाह हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो ज़िंदगी के लम्हात बाकी हैं, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हुए अल्लाह हमें गुजारने की तौफ़ीक दे, नाफरमानियों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।